So today we'll be also continuing art and culture. Okay, I guess art and culture max to max today, tomorrow, and day after tomorrow. So it will be over. And yeah, then start with some good questions which you can expect in mains. The question is: land grant was at its height in early medieval period. Okay, throw light on land grant types and its ideological background. So here the question is: there is a topic we know land grants is a very important topic in even in medieval India, even in ancient India. Okay, land grants started from Satavahanas. They were the one who started with giving lands on a very like normal scale, but it started increasing. Okay, okay. So here the question is asking about land grants was at its height in its early medieval period. Early medieval period. See, early medieval period is 8th century. Okay, starting to 8 to 10 or 11, you can tell. This is the early medieval. After Pallavas and all, early medieval started. So you have to know what is early medieval period. That is this particular era. Okay, you can also add in the introduction part. You can add this 8th to 10th century. Fine. So first of all, we'll give a brief introduction. The early medieval period in Indian history marks the growth of cultivation and organization of land relations through land grants. The early Pali text of the pre-Mauryan period refers to villages granted to the Brahmanas by the rulers of Kosala and Magadh. The term uses Brahmadaya. See, even like on a inscription wise, if you tell inscription wise, so you get to know कि सातवाहना were the one. But Magadh period में भी उससे पहले भी pre-Mauryan 6th century BC में भी we have covered in our static notes Brahmadaya lands. Like on a very low scale it was given. Okay, villages were given, villages were granted. This practice picked up in the post-Gupta period, that is in the early medieval times. It was there, but ज़्यादा से ज़्यादा ये जो अर्ली medieval period में है या फिर जो लेट एंशिएंट पीरियड में है वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ, खास करके गुप्ता के बाद, बिकॉज गुप्ता के बाद शुरू हो जाता है अर्ली medieval. Okay, fine. You can add the timeline also. 7th 8th century starting it started increasing. Post Gupta मतलब क्या? Post Gupta मतलब obvious सी बात है 6th के बाद, 6th 7th 8th वो जो टाइमलाइन है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? थ्रो लाइट ऑन द लैंड ग्रांट टाइप्स. नो, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, एंड इट्स आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड. तो पहले तो ब्रह्मदया है. ब्रह्मदया रिप्रेजेंट्स अ ग्रांट ऑफ लैंड ईदर इन इंडिविजुअल प्लॉट्स और होल विलेजेस गिवन अवे टू ब्राह्मणस मेकिंग देम लैंड ओनर. ब्रह्मदया ग्रांट जो कि खास करके ब्राह्मणस को दिया जाता था. It was meant either to bring the virgin land under cultivation or to integrate existing agricultural settlements into new economic order dominated by the Brahman proprietor. मतलब डायरेक्ट खाली लैंड भी दिया जा सकता है जो कि कल्टीवेट करने के लिए, या फिर कोई अगर एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर सेटलमेंट है वो भी दिया जाता था ब्राह्मण को, ताकि एक अच्छे से लाइक इंटीग्रेट होकर और अच्छे से हो सकता है ब्रह्मदया. ओके, इंडिविजुअल प्लॉट भी दिया जा सकता है या फिर होल विलेज भी दिया जा सकता है. ओके, तो योगा ब्रह्मदया लैंड्स. नेक्स्ट इज देवदान्स और देवदानास. देवदानास आर द लैंड्स गिफ्टेड टू रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स बोथ ब्राह्मणिकल एंड नॉन ब्राह्मणिकल. देखो अब यहाँ पे एक कैच है. ब्रह्मदया मीन्स ब्रह्मदया लैंड्स ये सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाता था. ब्राह्मण मतलब एक पर्टिकुलर जो कि इन यू कैन से इन अ वे इट इज पर्टिकुलर टू हिंदुइज्म, राइट, वो जो सोशल ऑर्डर पे रहता है. देवदानास लैंड वो ब्राह्मण को दिया जा सकता है या फिर नॉन ब्राह्मणिकल किसी को भी दिया जा सकता है, कौन सी प्रकार का मतलब एक रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट के लिए. ओके, देवदान. देन थर्ड इज सेक्युलर ग्रांट. सेक्युलर ग्रांट में बहुत कुछ चीज आएगा यहाँ पे. फ्रॉम द 7th century AD ऑनवर्ड्स ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वेर ऑल्सो बीइंग रेन्यूमरेटेड थ्रू लैंड ग्रांट्स. ऑफिसर जो काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, दे ऑल्सो स्टार्टेड रिसीविंग लैंड ग्रांट्स. वन ऑफ द रीजन वाज डीमोनेटाइज्ड इकोनॉमी. एज अ रिजल्ट here was difficult in paying in cash. because देखो जैसे कि इफ यू रिमेंबर, जिसने भी मेरा वाला स्टैटिक पढ़ा है, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता इकोनॉमी वाज नॉट गुड. पोस्ट गुप्ता इकोनॉमी वाज नॉट गुड. ठीक है, कैश वगैरह उतना था नहीं. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैड टू पे इन कैश में दिया. मतलब इकोनॉमी बहुत मतलब खराब अवस्था में था. ठीक है, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन विच यू हैव कवर्ड. सो उसके बाद क्योंकि गुप्ता बोला जाता है, गुप्ता वाज वेरी थ्राइविंग, बट एंड गुप्ताज एंड पे आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी स्टार्टेड डिक्रीजिंग. इकोनॉमी वाज नॉट इन अ गुड फॉर्म और अच्छे वो नहीं था, राइट. तो डिफिकल्टी था इन पेइंग इन कैश. सो लैंड दिया गया.
ओके, बिकॉज कैश नहीं दिया जाता तो लैंड ग्रांट दिया गया. ओके, इट क्रिएटेड अनदर क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु वर नॉट ब्राह्मणस. तो पहले से तो ब्राह्मणस को दिया जाता था, दे वर ऑलरेडी लैंडलॉर्ड्स, बट यहाँ पे सबको दिया गया. एवरीवन स्टार्टेड गेटिंग लैंड. सो एक लैंडलॉर्ड क्लास शुरू हुआ जो कि ब्राह्मणस नहीं था, अदर देन ब्राह्मणस वो लोग शुरू हो गए थे. और ये सब चालुक्यज ऑफ गुजरात, पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी 8 9, चालुक्यज ऑफ गुजरात जो कि सोलंकी डायनेस्टी है, सोलंकी डायनेस्टी भी वही 10 11, इसी सब टाइम पे यहाँ पे बहुत ही लैंड ग्रांट्स दिया गया, सेक्युलर हर प्रकार का. ठीक है, तो इनका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, ये जो लैंड ग्रांट का आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है. देखो, क्योंकि द पॉइंट इज, यहाँ पे आप गुप्ता के बारे में नहीं लिख सकते. देखो, गुप्ता में भी था, गुप्ता में भी लैंड ग्रांट्स वाज देयर व्हिच वी हैव कवर्ड इन द सोशियल ऑफ लैंड ग्रांट्स. ठीक है, Gupta maybe land grants were there, but here the question is not about Gupta. Here the question is post-Gupta, early medieval. So you can't mention about Gupta. If you write about Gupta land grants were given, assimilation of tribals were happening in Gupta, which you have covered in our last class. Because of land grants only, बहुत सारे दूर दूर तक जब लैंड दिया गया तो ट्राइबल्स गॉट एसिमुलेटेड इनटू द ब्राह्मणिक सोशल ऑर्डर, not into Brahman but the Brahmanic social order. So you can't write that point here, you will get a big zero. Do not write about Gupta because the question is not asking about Gupta. Okay, fine. Next, so ideological background क्या था? Ideological background ये था कि जो लैंड ग्रांट्स थे फॉलोड ए सेट फॉर्मूला एज ए सिस्टमाइज्ड इन लॉ बुक्स, जो कि धर्मशास्त्र इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड. ठीक है, तो धर्मशास्त्र लॉ बुक्स ये तो पहले से था, लेकिन वो जो फॉर्मूला था वो उसको ज्यादा फॉलो किया गया. जो सेट फॉर्मूला था, जो सिस्टम था, उसको फॉलो किया गया पोस्ट गुप्ता पीरियड पे. इवन गुप्ता में भी फॉलो किया गया था, बट हियर बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन पोस्ट गुप्ता अर्ली मिडिवल, सो विल राइट पोस्ट गुप्ता. ओके, द मेन आइडिया बिहाइंड द लैंड ग्रांट्स वाज द ब्राह्मणिकल लॉजिक ऑफ एक्वायरिंग पुण्य थ्रू दान. दान दे के जो पुण्य होता है वो मेन लॉजिक था लैंड ग्रांट का. ठीक है, द ग्रांट्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड आर recommended by all the Puranas of the post Gupta century. आप जितना भी पुरानस देखोगे, पुरानस में भी ये चीज लिखा है, रेकमेंड किया गया है कि ऐसे करना चाहिए. सो एक कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेसी मिल जाती है. ठीक है, मतलब ये गलत नहीं है क्योंकि पुरानस में लिखा है, ऐसे बोला जाता था. ठीक है, तो यही तो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, यहीं से तो आया है लैंड ग्रांट्स का तो चीज, इसीलिए तो करते थे. द सेंस ऑफ गिल्ट इन किंग्स कपल्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ जो प्रायश्चित बोलते हैं, और प्रायश्चित जो हिंदी वर्ड है वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्राह्मणस. ब्राह्मणस लोग क्या करते थे उस टाइम पे, किंग्स अगर कुछ गलती करेंगे तो दोज ब्राह्मणस यूज्ड टू गाइड देम, दे विल टेल देम आप ये कीजिए तो कहीं ना कहीं आपका प्रायश्चित हो जाएगा. ओके, हिंदी वर्ड है प्रायश्चित, और प्रायश्चित करके आप बोल सकते हो. The quest for legitimacy was a major consideration for the political authorities. Thus, there was a notion of mutual interest of the donor and the donee. तो ये पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स जो आपको लिखना है इन अ वेरी नाइस फॉर्मेट. यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप पूरा पॉइंट्स दे रहे हो, पुण्य का पॉइंट दे रहे हो, आप पुरानस का पॉइंट दे रहे हो, आप गिल्ड का पॉइंट दे रहे हो, आप लेजिटिमेसी का पॉइंट दे रहे हो. ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक था और बेसिक आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड था कि लैंड ग्रांट्स क्यों होते थे. ओके, तो कंक्लूजन में लिख सकते हो इंडियन फ्यूडलिज्म और लैंड ग्रांट मतलब दिस हैज इवेंचुअली यही फ्यूडलिज्म पे कन्वर्ट हुआ. फ्यूडलिज्म मतलब जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड इतना लैंड होल्ड करने लगे, वही तो फ्यूडल ऑर्डर बोलते हैं उसको. सो इंडियन फ्यूडलिज्म रोज अप इन द अर्ली मिडिवल पीरियड that led to some changes like seeds of political decentralization. जैसे कि लास्ट क्लास में भी गुप्ता पे बोला था कि क्योंकि बहुत सारे लैंड आने लगे, किस पे, ब्राह्मणस हो या जो भी हो उनके पास आने लगे, तो एक लैंडलॉर्ड एक क्लास उनका तैयार हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी पावर आने लगे. सो एक पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, was shown in the form of land grants. For example, सामंत, महासामंत, ऑटोनोमस रूलर, मतलब वो भी they can also change the government, इनके पास थोड़ा पावर आने लगा. ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे लैंड ग्रांट बहुत बड़ी चीज होती थी. सेकंड इज एमर्जेंस ऑफ न्यू लैंडेड इंटरमीडियरीज which was absent in the early historical period. This practice of land grant began with the Satavahanas. ये जो प्रैक्टिस था ये तो सतवाहना से शुरू होता है बिकॉज पहला इंस्क्रिप्शन यहीं से ही है, लेकिन एक जो लैंड ग्रांट में भी बहुत सारे मिडिल मैन, इंटरमीडियरीज वो सब आने लगे, तो ये भी एक चेंज हुआ. मेनली चेंजेस इन द एग्रेरियन रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस आने लगे लैंड ग्रांट्स में, बिकॉज लैंड में
ज़्यादा से ज़्यादा तो एग्रीकल्चर होते थे, तो एग्रेरियन रिलेशंस में भी बहुत चेंजेस आने लगे। सो ये पूछा नहीं है यहाँ पे। सपोज एक पूछ सकता है कि क्या चेंजेस आया, कि इफेक्ट, अगर इफेक्ट क्या था, तो आप मिलके ये आंसर को एक अच्छे तरीके से बना सकते हो। बस कंक्लूजन में, अगर आपका वर्ड लिमिट 250 है तो यू कैन राइट दिस फुल, और एल्स यू कैन एडिट फ्रॉम हियर इन 150 वर्ड, बट यहाँ तक सब होना चाहिए। टिल हियर आंसर इज परफेक्ट। ओके, तो लैंड ग्रैंड का वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, इट्स अ कॉमन स्टैटिक स्टफ जो कि आ सकता है। नेक्स्ट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट प्लेड ए मेजर रोल इन द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब देखो, हमने भक्ति का कितना वैरायटी क्वेश्चन, हमने भक्ति का एक क्वेश्चन किया था, भक्ति का वन क्वेश्चन हमने किया था, कहाँ पे किया था? किसी का वीडियो आ रहा है। ज्योति अपना वीडियो म्यूट करो, ऑफ करो। जसना म्यूट ऑफ करो। ओके, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखो, ये भक्ति मूवमेंट का है, लेकिन रिलेशन टू नॉर्थ इंडिया के साथ है, और एक चीज है दिल्ली सुल्तानेट के साथ है। ठीक है, हमने एक भक्ति मूवमेंट नॉर्मल किया था जो कि अल्वर नयनर का है, एक भक्ति मूवमेंट हमने महाराष्ट्र के साथ किया था जो कि शिवाजी मराठा रूलर के साथ किया था, और एक है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट प्लेड ए मेजर रोल इन द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। मतलब दिल्ली सुल्तानेट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इट प्लेड ए मेजर रोल भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। उसी टाइम में ही तो हुआ था, दिल्ली सुल्तानेट जब चल रहा था, दैट वाज द टाइम व्हेन भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया वाज गोइंग ऑन ए वेरी बिग स्केल। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, तो वही चीज हम सेम का इंट्रो हम देंगे। भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द भक्ति कल्ट ऑफ अलवर्स एंड नयनरू ऑफ साउथ इंडिया दैट स्टार्टेड इन 7 to 8 सेंचुरी एडी। शुरुआत 7 to 8 सेंचुरी एडी में हुआ था, अल्वर और नयनर ने किया था, जो कि विष्णु एंड शिवा का है। एंड फिर जाके ये साउथ नॉर्थ इंडिया पे आया अराउंड 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में, खास करके फर्स्ट महाराष्ट्र पे आया, देन इट वेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया। द मूवमेंट वाज मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल वन एंड एडवोकेटेड फॉर लव फॉर गॉड थ्रू डिवाइन कनेक्ट, इंडिविजुअल के साथ डिवाइन कनेक्ट। वन लाइन आप लिख सकते हो कि भक्ति मूवमेंट का बेसिक आइडियोलॉजी क्या था। लव फॉर गॉड था, इंडिविजुअल रिलेशन विथ गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। फाइन, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सेवरल हिस्टोरियंस कंसीडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। अब दिल्ली सुल्तानेट शुरू, आपको एटलीस्ट शुरुआत लिखना पड़ेगा, यू शुड नो। जो आइबक का आया था, कुतुबुद्दीन आइबक 1206 एडी से शुरू हुआ था। ओके, तो खास करके जो 13th सेंचुरी से लेके 13 to 1400 इनिशियल 14 तक जो दिल्ली सुल्तानेट चला था, तो considers the establishment of this Delhi Sultanate and with the arrival of Islam as the major factor of the rise of Bhakti movement. How? देखो, see, during the initial Bhakti movement, that is during 7 to 11th century AD, it was more of an individual sentiment. कहाँ पे? साउथ इंडिया में जो अलवर नयनर पहले शुरू किए थे, at that time 7 to 11 it was more of an individual. However, after the 13th century AD onwards, that is after the establishment of Delhi Sultanate, the movement came under the influence of Islam. इस्लाम उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छे तादाद पे इट केम इनटू इंडिया, राइट? सो भक्ति मूवमेंट्स आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, सर्विस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड केम आफ्टर द सूफीज्म कॉन्सेप्ट। और इस्लाम वाले उस टाइम में बहुत सारे सूफी सेंट आते थे, और सूफी सेंट्स को पैटर्नेज दिल्ली सुल्तानेट ने बहुत दिया था, राइट? एंड सूफीज्म का कॉन्सेप्ट भी तो वही है, इक्वलिटी, सर्विस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो कहीं ना कहीं मैच हो गया, हमारा भक्ति मूवमेंट का भी वही था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैच हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ावा दिया। इट गेव एन इम्पेटस टू द भक्ति मूवमेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, सो दैट यू कैन इन योर ओन लैंग्वेज यू कैन राइट भक्ति मूवमेंट्स आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, सर्विस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड केम आफ्टर द सूफीज्म कॉन्सेप्ट व्हिच इन टर्न केम विद द दिल्ली सुल्तानेट। अंडर दिल्ली सुल्तानेट देयर वाज पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, हम सबको पता है, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट, कॉइन्स एंड राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक ग्रुप्स, आर्टिसंस। These groups are highly dissatisfied with the rigid Brahmanical caste structure, and as a result, they supported the Bhakti movement, which supported all caste. तो जो
रिजिड ब्राह्मणिकल कास्ट स्ट्रक्चर चल रहा था, तो दो बार हुआ है ब्राह्मणिकल रिजिड। एक हुआ था जो लेटर वैदिक पे, बिकॉज ऑफ दैट। अब देखो हिस्ट्री को कनेक्ट करो, यू कैन यूज इट इन एनी काइंड ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चन। हिस्ट्री को कनेक्ट करो, लेटर वैदिक में दैट वाज अ टाइम व्हेन बहुत ही रिजिड हुआ था, ठीक है, ब्राह्मणिकल कास्ट स्ट्रक्चर। इसके अगेंस्ट में आई थी बुद्धिज्म जैनिज्म। ओके, बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका चारवाका सब आई थी। ओके, चारवाका। अब देखो उसके बाद फिर ब्राह्मणिज्म आने लगा, और खास करके शुंगा से पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन से शुंगा आया। शुंगा डायनेस्टी फिर रिवाइव करने की कोशिश किया। शुंगा ने ब्राह्मणिज्म को और वैष्णविज्म को वापस लाया। दैट इज द बेस नगर इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है, ठीक है। भगवतिज्म जिसको बोलते हैं, भगवतिज्म, बेस नगर इंस्क्रिप्शन। ओके, फिर ये चला। फिर बुद्धिज्म भी साइड बाय साइड चल रही थी, बिकॉज सातवाहनास भी बुद्धिस्ट को थे, सातवाहनास भी हिंदू थे लेकिन बुद्धिस्ट को भी टॉलरेंट थे। फिर उसके बाद कुषाण आए, फिर गांधारा आर्ट, ये सब चल रहा था। फिर जाके गुप्ता आया। एंड गुप्ता जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, पूरा का पूरा कॉन्सोलिडेशन ऑफ ब्राह्मणिकल और आप वैष्णविज्म जो भी बोल सकते हो। हाँ, थोड़ा बेटर था, इट वॉज बेटर देन वैदिक, बट स्टिल देन इट वॉज ब्राह्मणिकल, राइट। तो ये जो चल रहा है ना, ये जो लिंकिंग अप करोगे, फिर ये चलते चलते गुप्ता के बाद साउथ इंडियन आए, डायनेस्टीज आए, वहां पे भी ब्राह्मणिज्म चला। खास करके ऊपर राजपूत्स आ गए 10th 11th में, राजपूत्स ब्राह्मणिकल। तो जो रिजिड ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है वही चीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दे आर हाईली डिससेटिस्फाइड विद द रिजिड ब्राह्मणिकल कास्ट स्ट्रक्चर prevailing during that time, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो, prevailing during that time, and as a result they supported the bhakti movement which supported all caste. So if you know the history nicely, connectivity, these answers will fetch you very good marks, ठीक है, because these are not direct questions which will be asked in question in exam. Okay, तो एक पॉइंट आपने लिंक कर दिया, पूरा रिजिड ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर के साथ लिंक कर दिया, तो इजी लगा उनको, क्योंकि उस टाइम पे भक्ति आ गई थी और भक्ति इक्वलिटी ब्रदरहुड की बात कर रही थी। यहाँ पे कोई कास्ट का चीज नहीं है, तो ऑब्वियसली कनेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, सम हिस्टोरियंस say that bhakti movement was more towards defense against Islam with the establishment of the Delhi Sultanate, as Islam posed a challenge and bhakti movement was a response to this challenge. हमने लास्ट क्लास में भी सूफीज्म में किया था। कहीं ना कहीं अगर देखोगे सूफीज्म was जो इस्लाम, जो इस्लाम भी काफी चेंज आ गई थी उस टाइम पे, मतलब रिफॉर्म जरूरी थी, राइट। जो ऑर्थोडॉक्स होता है, ठीक है, जैसे कि हिंदुइज्म में भी काफी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट था। हर रिलीजन में एक एक कुछ कुछ ऑर्थोडॉक्स चीज होती है। ओके, सो कहीं ना कहीं कुछ हिस्टोरियंस को ये समझ में आया था कि सूफीज्म इस्लाम को ही चेंज करने लाया था या फिर रिफॉर्म करने लाया था। सो दिस say that भक्ति मूवमेंट, और भक्ति मूवमेंट के अंडर में भी सूफीज्म आता है। सो भक्ति मूवमेंट वाज मोर टुवर्ड्स डिफेंस अगेंस्ट इस्लाम विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, एज इस्लाम पोज्ड अ चैलेंज एंड भक्ति मूवमेंट वाज अ रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज। चैलेंज मतलब मैं वही ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। ओके, थर्ड पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वाज अ सेटबैक टू द राजपूत ब्राह्मण कोalition। ये पॉइंट आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने अभी राजपूत का जो ब्राह्मणिकल रिजिड कास्ट स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पे भी लिख सकते हो। एक राजपूत और ब्राह्मण का कोalition भी हो गया। राजपूत यूजुअली क्षत्रिय होता है, लेकिन उनका कोalition बन गया था उस टाइम पे। So establishment of Delhi Sultanate was a setback to the Rajput Brahmin coalition, which was very rigid and orthodox in nature. This created a favorable condition for the rise of bhakti in North India. और उसी टाइम पे भक्ति आ रही है, उसी टाइम पे सूफीज्म आ रही है। देख, वो साथ हो गए, कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्टिव्स सिमिलर था, तो कहीं ना कहीं वो भक्ति मूवमेंट को एक इम्पेटस दिया। ओके, सो ये बेसिक जो क्वेश्चन का जो डिमांड था, इसी लैंग्वेज के अंदर ही रहेगा। लाइक यू कैन चेंज द सेंटेंस, वोकेबलरी चेंज कर सकते हो, बट द सोल शुड बी द सेम। ओके, सो एक आप एंड में, दो देर आर अदर फैक्टर्स विच लेड टू द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट क्योंकि दिल्ली सुल्तानेट के बारे में पूछ रहे, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है उसी के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। हाउएवर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेजर एट्रीब्यूट to its rise in North India. Okay, next.
ओके, सो ये एक न्यूज़ में भी था, इसलिए मैंने कवर किया था। जो जम्मू कश्मीर का या फिर कश्मीर का जो मिडिवल आर्किटेक्चर है, ये न्यूज़ में था, राओज ने कवर किया था। क्वेश्चन वहीं से है, ये नोट्स भी वहीं से मैंने लाइक बनाया है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अर्ली मिडिवल आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर। ओके, द अर्ली medieval अगेन, अर्ली medieval पूछ रहा है। द अर्ली medieval आर्किटेक्चर ऑफ कश्मीर बिगैन फ्रॉम 7th सेंचुरी एडी। जब अर्ली medieval आ जाएगा तो 7th सेंचुरी से शुरू कर देना, 7th 8th 9th 10th 11th तक, दिल्ली सुल्तानेट तक। फिर उसके बाद रियल medieval शुरू होता है, जो कि दिल्ली सुल्तानेट एंड मुगल्स। The early medieval architecture of Kashmir began from the 7th century AD and almost ended with the transfer of kingdom from Hindu to Muslim hands in वही 1337 से आसपास। मोहम्मद घोरी वो सब आ गए थे, गजनी वगैरह वो सब आ गए थे, तो कहीं ना कहीं उस टाइम तक पूरा का पूरा शुरुआत से लेके पूरा 14th सेंचुरी तक सब आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे जो राजपूत किंगडम्स थे इंड में, वो सब के सब लाइक हैंड ओवर कर दिया अपना किंगडम दिल्ली सुल्तानेट को। ओके, तो medieval कश्मीर आर्किटेक्चर इंक्लूड्स बुद्धिस्ट एंड हिंदू आर्किटेक्चर दोनों। ठीक है, ओके। तो रूलर्स एसोसिएटेड विद टेम्पल बिल्डिंग। टेम्पल बिल्डिंग में दो बड़े रूलर जो कि एसोसिएटेड थे वो थे, एक है करकोटा डायनेस्टी और एक है उत्पला डायनेस्टी। और भी छोटे मोटे डायनेस्टीज हैं, लेकिन जो इनिशियल, क्योंकि अर्ली मेडिएवल की बात हो रही है तो हम अर्ली मेडिएवल की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये तो लास्ट क्लास जिसने भी अटेंड नहीं किया था उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लास्ट क्लास अटेंड किए नाउ दे कैन कनेक्ट। कि लास्ट क्लास में हमने पूरा का पूरा कश्मीर हिस्ट्री पढ़ा था। ठीक है, पूरा कश्मीर का जो हिस्ट्री है आंसर के फॉर्मेट में लिख दिया था, तो आपको अभी क्लैरिटी आ गई होगी। हमने पूरा एंशिएंट से लेके अशोका टाइम से लेके कारकोटा से लेके उसके बाद कैसे बहुत सारे रिलीजन रूल किए थे, बुद्धिज्म से लेके हिंदुइज्म से लेके फिर इस्लाम से लेके एंड में जब मुगल वगैरह आ जाएंगे तब इस्लाम रूल होगा। तो ये सब हमने पढ़ा था। क्योंकि ये टेम्पल बिल्डिंग सबसे ज़्यादा अर्ली मिडिवल टाइम पे हुआ था, तो वही 8th सेंचुरी के आसपास हुआ था। पहले तो कारकोटा डायनेस्टी 724 8th सेंचुरी एडी लिख सकते हो। बिल्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदू टेम्पल्स। ललित आदित्य करके किंग था, नो नीड टू राइट द नेम बट यू कैन यूज इट। दोनों बुद्धिस्ट और हिंदू टेम्पल्स किए थे। फिर उत्पला डायनेस्टी के बाद आई थी 9th सेंचुरी एडी में, इन्होंने हिंदू टेम्पल्स किया था विष्णु और शिवा के नाम पे। अनंतिवर्मन एक बहुत ही फेमस उत्पला रूलर है, एंड शंकर वर्णम, नो नीड टू राइट। ओके, ये सब हमने स्टैटिक नोट्स में लिखा है। ओके, देन इन पॉइंट ऑफ मटेरियल्स, तो ये टेम्पल हो गया। आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है तो टेम्पल पहले आएगा। इन पॉइंट ऑफ मटेरियल्स, ornament and technique, there is practically no difference between the two architecture, but the religious needs of two communities being in certain essential different। because देखो बुद्धिज्म का भी थोड़ा डिफरेंट होता है, हिंदुइज्म का भी डिफरेंट होता है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, राइट। सो थोड़ा तो मतलब प्लान और एलिवेशन में डिफरेंस था, तो एक एक करके लिख देंगे। क्योंकि अर्ली मेडिएवल की बात हो रही है तो अर्ली मेडिएवल में बुद्धिस्ट और हिंदू ही आएंगे, इसमें इस्लाम नहीं आया था, क्योंकि इस्लाम विल कम रूलर्स दिल्ली सुल्तानेट और उसके बाद आएंगे। अभी अर्ली मेडिएवल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर अब इस्लाम अर्ली मेडिएवल क्वेश्चन दिया और आप अगर मुगल के बारे में लिख रहे हो, यू विल गेट ए बिग जीरो, रिमेंबर। सो वर्ड के ऊपर फोकस करना, एग्जैक्टली पूछा क्या है, एंड फॉर दैट योर इन डेप्थ नॉलेज इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि एग्जैक्टली आप क्या लिखोगे। अब मिडिएवल देख के हमारे ऐसा माइंड में, एक्सपीरियंस का माइंड में हो चुका है कि मिडिएवल वर्ड देख लिया तो मुगल लिख लो, या फिर वो लिख लो, दिल्ली सुल्तानेट लिख लो। नहीं, क्वेश्चन अर्ली मिडिएवल दिया है, अर्ली मिडिएवल में सब नहीं आते हैं। ओके, आप लिख के आ जाओगे, आप सोचोगे मैंने तो सही लिखा था, मार्क्स 20-25 मार्क कम आते हैं इसके वजह से। फाइन। फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, टू द पॉइंट लिखेंगे। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में बुद्धिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड कश्मीर, और बुद्धिज्म तो अशोका के टाइम से इंट्रोड्यूस में है, एंशियंट टाइम से, तो एक लिख दो। Under Ashoka during the Mauryan rule से ancient time से, the Buddhist who inherited a long artistic tradition naturally adhered to the old models, though they employed local materials and elaborated the decoration। जो मॉडल पहले से था उनको ही उन्होंने इम्प्लीमेंट करा, अपना अपना थोड़ा थोड़ा लोकल चीजें तो लाएंगे ही, राइट। और इन्होंने मटेरियल यूज वाज ग्रे लाइमस्टोन, ग्रे लाइमस्टोन उन्होंने यूज कर, क्योंकि यूनिक पॉइंट है, यू हैव टू राइट। ठीक है, ग्रे लाइमस्टोन उन्होंने यूज किया। एग्जाम्पल दे दो, एक है परिहासपुरा, और परिहासपुरा इट इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट चैत्य बिल्ट बाय ललितादित्य, जो कि कारकोटा डायनेस्टी है। यही चीज, ये जो चैत्य है, ठीक है, चैत्य विहारास पता होगा, सबको पता होना चाहिए। ये जो चैत्य है, प्रेयर हॉल्स बोलते हैं चैत्य को, बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स,
विहारास जहाँ पे रहने के लिए शेल्टर है। तो ये जो चैत्यास है, इट लेटर इन्फ्लुएंस द हिंदू टेम्पल्स, कहीं ना कहीं यहाँ से ही हिंदू टेम्पल्स आगे बने, ठीक है। और एक है वांगनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ओके। वांगनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स बाय द करकोटा डायनेस्टी डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पे हम बुद्धिज्म का भी एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, एक शिवा टेम्पल का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी टाइम जो हुआ था वही देना है, राइट, जो उसी टाइम हुआ था वही देना है। सबको दिख रहा है, पीडीएफ दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। तो परिया सपूरा का दे दिया एक इट इज ओनली वन, सो यू कैन लाइक यू कैन यूज इट बिकॉज इट इज वेरी यूनिक। वांगनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स का दे दिया। अब आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ टेम्पल्स, अब टेम्पल्स के बारे में आते हैं। दो एग्जांपल देते हैं बुद्धिज्म का, अभी टेम्पल्स में आएंगे, टेम्पल्स में भी एग्जांपल देंगे। जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक नोट्स है, इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ टेम्पल्स में वुड यूज हुआ था, यूनिक वुड टेम्पल्स में होता है। ये वुड को आप अगर बुद्धिज्म में लिखते हो अगेन यू विल गेट रॉन्ग मार्क्स। वुड इज इन टेम्पल्स, लाइमस्टोन इज इन बुद्धिज्म आर्किटेक्चर, ठीक है। स्पेशली पिच्ड रूफ्स, एब्सेंस मंडप नहीं है, जो कि अलग अलग नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में मंडप रहता है, साउथ इंडियन में भी रहता है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ मंडप एंड कर्विलिनियर शिखाराज, टावर नहीं होता है। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ गर्भगृह इज ए पिरामिडिकल रूफ, ठीक है। द टेम्पल हैज ए स्ट्रेट एज्ड पिरामिडिकल रूफ्स इन टू टायर्स instead of a curvilinear superstructure of the southern temple. This was influenced by the early Buddhist architecture in Kashmir. जो पहले पहले बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर थे, खास करके जो अशोका के टाइम पे, वहीं से बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हुआ था। यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, नो नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट एंड दीज आर यूनिक पॉइंट्स यू कैन राइट, ठीक है। पगोडा शेप्स में होते थे, काफ़ी फेमस है, सबको पता होगा। टेम्पल्स और इन पगोडा शेप, एग्जाम्पल दे दो, मार्तांड टेम्पल, अविंतेश्वरा टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल। अविंतेश्वर टेम्पल पंचतन स्टाइल में हुआ था, ठीक है। और पंचतन स्टाइल पहले से ही गुप्ता टाइम से है, तो कहीं ना कहीं गुप्ता से भी इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। गुप्ता नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। तो डॉट करके वेरी इजी वे पे लिखना है ताकि समझ में आए सबको एग्जैक्टली आप बताना क्या चाहते हो। देखिए मेंस का ही प्रिपरेशन आपको अल्टीमेटली ही रैंक देगा, ठीक है। प्रीलिम्स, वैसे प्रीलिम्स डिफिकल्ट है मानता हूँ, लेकिन इट इज द मेंस व्हिच विल गिव यू द फाइनल रैंक, जो आपका जो मोटो है क्लियर करना, प्रीलिम्स नहीं है वो मेंस ही है, ओके। देयरफॉर तो आपको इस तरीके से लिखना है एग्जाम्पल के साथ। देयरफॉर मिडिवल कश्मीर हैज एन यूनिक आर्किटेक्चर व्हिच वाज अ मिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशंस। मिडिवल कश्मीर खास करके यहाँ पे अर्ली मिडिवल दे दोगे। फिर तो सबको पता है कि इस्लाम आ गया तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आने लगे, ओके। फाइन, नेक्स्ट, ओके। भक्ति एंड मिस्टिसिज्म ऑफ लालदेड। लालदेड हमने पढ़ा था, इमर्ज एज ए सोशल फोर्स इन कश्मीर, ये भी न्यूज़ में था। अब लालदेड हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था लास्ट टू लास्ट क्लास में, क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू वुमेन भक्ति सेंस, राइट। वुमेन भक्ति सेंस के बारे में हमने 3 से 4 4 या 5 एग्जाम्पल हमने दिया था उस आंसर पे। इट वाज 150 वर्ड आंसर क्वेश्चन यहाँ पे, और वहां पे हमने 1 एग्जाम्पल लाल देट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था बिकॉज इट वाज अ होलिस्टिक क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज टोटली ऑन लाल देट, सो इफ यू डू नॉट नो द व्यूज, एंड दिस इज नथिंग आई एम ब्रिंगिंग यू समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज देयर इन बुक ओनली। The point is in those book it is there where which you have not studied. It is there in Poonam Daya Dalal. You can check right now. And it is a prescribed ancient book, ancient and medieval book. It is mentioned in other books. Even I feel कश्मीर का भी अगर आप थोड़ा कुछ बुक्स देखोगे वहां पे है, ओके। लालेट इज वेरी फेमस, ठीक है। न्यूज में भी कहीं ना कहीं ये आता रहता है, थोड़ा बहुत आता रहता है। इफ यू चेक फॉर करंट अफेयर्स लास्ट 1-2 साल का, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा था। फाइन, सो Kashmir has produced many saints, poets, and mystics, but Lal Ded from the 14th century is very prominent. तो लाल देड भक्ति थे, भक्ति मूवमेंट के थे, लेकिन वुमेन थे, राइट। हम भक्ति मूवमेंट में मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं पे ही ये नाम आता है लाल देड। शी वॉज ए कश्मीर शाइवाइट एंड इन्फ्लुएंस्ड द भक्ति मूवमेंट इन कश्मीर। वो एक शिव जी को पूजा करते थे, फिर इन्फ्लुएंस द भक्ति मूवमेंट इन कश्मीर। भक्ति एंड मिस्टिसिज्म ऑफ लाल देड emerged as a social force
इन कश्मीर बाय इन्फ्लुएंसिंग पीपल एंड एनरिचिंग द कल्चर। बहुत ही ज़्यादा इनका वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब क्या है हम लिखेंगे क्योंकि एज ए सोशल फोर्स, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ही पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स रिलेटेड मटेरियल्स भी मिल जाएगा। शी एक्सप्रेस द स्पिरिचुअल एंड मिस्टिक एक्सपीरियंसेस थ्रू हर पोइट्री कॉल्ड वाक, VAKH, वाक्स, और लाल वाक्स बोलते हैं। तो ये वर्ड आ सकता है प्रीलिम्स में, VAKHS इसका है, इन लोकल कश्मीरी लैंग्वेज, सो दैट इट रीच द मासेस। Therefore, she laid the foundation of the rich Kashmiri literature and folk flow। तो कश्मीरी फोक जो होता है, उनका जो लिटरेचर होता है, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल थिंग यहाँ पे लिखा था, ये कंपाइलेशन है। जैसे अभंगाज होता है, सबका अलग अलग कंपाइलेशन का नाम रहता है। दिव्य प्रबंधम होता है जिसका साउथ में हमने पढ़ा था, जो अलवर और नैनर का, वैसा ही इनका वाक्स है। तो यहीं से कहीं ना कहीं कश्मीरी लिटरेचर को फाउंडेशन मिल गया। Her teachings had many truths that are common to all religious philosophy, जैसे कि वैष्णविज्म, शैविज्म, सूफीज्म, thereby establishing a composite culture and a common spirituality। मतलब हिंदुइज्म हिंदू का भी है, कहीं ना कहीं सूफीज्म भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मल्टी कल्चरलिज्म वर्ड यूज कर सकते हो, कंपोजिट कल्चर यूज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं था। ओके, और जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ी चीज थी, सबसे ब्यूटीफुल चीज था भक्ति मूवमेंट का, कंपोजिट कल्चर। ठीक है, ये सब वर्ड आपको रेडीमेड रखना है, कंपोजिट कल्चर, मल्टीकल्चरलिज्म, कॉमन स्पिरिचुअलिटी, ये सब वर्ड आपको यूज करना है। हर मिस्टिक्स promoted harmony and tolerance among Hindus and Muslims। The Hindus called her Laleshwari, Hindus ने उनको ललेश्वरी वो बोला, and the Muslims called her Lala Arifa, both endearingly called her लाल डेड, और दोनों ने मिलके उनको लाल डेड में, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम ग्रैंड मदर बोलते हैं। दिस कंटिन्यूज टिल टुडे, आज भी वो उतने पॉपुलर है, जो कश्मीर के होंगे उनको मालूम होगा ये कौन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। She believed in one God concept, preached non-violence, high thinking. At a time when world was suffering from social, political and economic conflicts, that was a time 14th century जहाँ पे बहुत problems हो रहे थे, मतलब हमारे इंडिया में भी पावर के लिए बहुत problems हो रहे थे। Her efforts in removing differences between men and women was highly significant, thereby preserving the notion of equality। उन्होंने equality का भी concept बोला था, non-violence का concept बोला था, मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट बोला था, मतलब बोली थी। Thus we can conclude that Lal Ded was one of those women bhakti saints who had a profounding effect in maintaining the multiculturalism aspect of Kashmir। Many Hindu and Muslim sages of Kashmir were influenced by her। Okay, next। Okay, very important question। Tantrism, if not in practice, at least on conception level, challenged patriarchy। Examine tantrism, especially keeping in mind the above context। ठीक है, तो तांत्रिज्म के बारे में पूछा गया है। अब जाहिर सी बात है, तांत्रिज्म का जब बात आती है, हम यहाँ पे हिंदू तांत्रिज्म की बात कर रहे हैं, हम बुद्धिज्म तांत्रिक की नहीं कर रहे। जो पाला डायनेस्टी पे आया था, क्या आया था बुद्धिज्म का? हीनयान, महायान और क्या है, वज्रयान। वज्रयान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और जब तांत्रिक प्रैक्टिसेस की बात होती है तो पहले तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए गुप्ता। ठीक है, गुप्ता से होता है, तो गुप्ता के सोशल के टॉपिक में हमने पढ़ा था, वन क्वेश्चन ऑल्सो डन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज आपको वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का मिक्सिंग लगेगा। तो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू मिक्स एंड राइट द आंसर द राइट वे। इट इज बिलीव दैट तांत्रिज्म ओरिजिनेटेड, पहले ओरिजिन लिख दो, इन द अर्ली सेंचुरीज एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड इन द एक्चुअल फेनोमेनन इन द गुप्ता पीरियड। तांत्रिक वर्शिप इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ द, क्यों तांत्रिक वर्शिप हुआ क्यों था? दैट वन थिंग, एसिमिलेशन ऑफ ब्राह्मणिक सोसाइटी विद द ट्राइबल्स। और ये कहाँ से आया था? जब उनको लैंड ग्रांट्स मिला था। यहाँ पे सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, स्कोप नहीं है। जब लैंड ग्रांट्स मिल रहा था दूर दूर तक, दे वर गेटिंग लैंड ग्रांट्स, तो ब्राह्मण्स लोग गए वहाँ पे अपना अपना, उनको जब लैंड मिला दूर दूर तक मिल रहा था, वहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, तो उनके साथ मिंगलिंग हो गई। जब उनके साथ मिंगलिंग होगी तो उनका जो प्रैक्टिस था, तांत्रिक प्रैक्टिस था, पहले से था लेकिन इतना लाइक सामने नहीं आया था। तो यहाँ पे वो ज़्यादा डेवलप हुआ एक्चुअली हुआ जब वो सोशल ऑर्डर से अंदर आए, बिकॉज ट्राइबल्स वर केप्ट आउट ऑफ द ब्राह्मणिक सोशल ऑर्डर। दे वर they intermingling or they came into this order because of the assimilation of the Brahmanic society with the tribals during the Gupta period। सबसे बड़ा पॉइंट है ये। Tantrism upholds a belief and practice contrary to Vedic Brahmanism। It is often associated with 5 elements। पंच तत्व बोलते हैं, अल्कोहल, मीट, फिश,
फिजिकल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये 5 प्रैक्टिस के इर्द गिर्द घूमती है तांत्रिक और तांत्रिज्म। ओके, तो अब आपने यहाँ पे, अब अगर देखोगे आंसर को, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइमलाइन दे रहे हो, ठीक है, दिस इज द टाइमलाइन। यूजुअली मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री के आंसर्स में इसे लिखना है, फिर आप उसका रीजन दे रहे हो, ठीक है, क्यों आया था, फिर उसका मतलब बता रहे हो ये क्या है तांत्रिक के बारे में, और दैट इन अ वेरी शॉर्ट वे, आप ज्यादा से वर्ड भी नहीं यूज कर रहे हो। अब अगर इसको बताने में आप इफ यू आर टेकिंग 100 वर्ड्स, इट मीन्स अगेन आप लूज कर रहे हो मार्क्स। विल बी नॉट राइटिंग व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अबाउट पैट्रियार्की, चैलेंज कर रहा है, वो लिखना है हमको, ये तो इंट्रो है। ओके फाइन, तो इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद क्वेश्चन क्या दिया है, तांत्रिज्म इफ नॉट इन प्रैक्टिस, अगर इफ नॉट इन प्रैक्टिस एटलीस्ट ऑन कंसेप्शन लेवल पे, ठीक है, कंसेप्शन लेवल पे तो वो पैट्रियार्की को चैलेंज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी चीज है ये। अगर देखोगे, प्रैक्टिस छोड़ दो, अगर आप जैसे बोलते हैं कि पेपर में ये अच्छा लग रहा है, मतलब आके कोई एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, मूवीज में स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, पेपर में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब मूवी बन के आती है तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन पेपर में दिखने के लिए अच्छा लग रहा है, तो कहना कि कॉन्सेप्ट लेवल पे ये पैट्रियार्की को चैलेंज करा है। कैसे, जो हमने लिखा था स्टैटिक में वही लिखेंगे। तांत्रिज्म इन अ वे चैलेंज्ड पैट्रियार्की, कैसे, बिकॉज इट वाज ओपन टू ऑल कास्ट, यहाँ पे भेदभाव नहीं है, ऑल कास्ट, और खास करके इट इंक्लूडेड वुमेन। सेम थिंग वी हैव टू राइट हियर इन ऑल रिचुअल्स। और हम सबको पता है कि तांत्रिक गुप्ता शक्ति कल्ट यहाँ से आया था, एंड देयर बाय इमर्ज द कल्ट ऑफ शक्ति। यस, इट चैलेंज पैट्रियार्की कंप्लीटली, दिस पॉइंट यू आर एग्जैक्टली राइटिंग इट, you are justifying it. Tantrism had 3 interconnected features: higher status to women as opposed to Vedic Brahmanical order. Vedic Brahmanical में women को ज्यादा वो नहीं दिया गया था, यहाँ पे उनको दिया गया था ज्यादा। Sexual rituals, presence of many female deities. Again, female, जब female की बात आती है तो patriarchy को हम challenge करते हैं। The Devi or the goddess had an individuality of her own and was worshipped for this rather than merely as a concept of a god. अगर आप वैदिक की बात करोगे वहां पे मेल गॉड्स ज्यादा हैं, फीमेल है, वी डू नॉट डिनाई कि फीमेल नहीं था वैदिक में, देयर वर फीमेल गॉड, बट देयर आर मोर ऑफ वैदिक मेल डोमिनेटेड गॉड्स इन वैदिक। बट इफ यू कम हियर तंत्रिज्म में ज्यादा से ज्यादा लाइक फीमेल गॉड्स को, मेल गॉड्स यहाँ पे भी थे बट फीमेल गॉड्स को इंपोर्टेंस ज्यादा दिया गया। और उनके क्यों दिया गया, बिकॉज ऑफ दर इंडिविजुअलिटी, नॉट मियरली एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ए गॉड, इंडिविजुअलिटी, ठीक है। वुमेन वर परमिटेड टू एस्टेब्लिश देयर ओन आश्रमस टू एक्ट एज प्रिस्टिसेस एंड टीच, मतलब उनको वो दर्जा दिया गया वो खुद भी टीच कर सकते हैं, व्हिच वाज नॉट द केस इन वैदिक। लाइक हाँ छोटा मोटा था, लेकिन ओवरऑल मेजोरिटी विद मोर देन 95% वाज मेल डोमिनेटेड इन वैदिक। So in a way, Vedic challenged the patriarchy system also. Like not challenge, it promoted, by the way, it promoted patriarchy. But यहाँ पे ये challenge कर रहा है. So you have to write what exactly is asked. Challenge तो यहाँ पे जब challenge हो रहा है तो यहाँ पे आप prove भी कर रहे हो. You are proving also from these points. You are proving हाँ it is challenging. Okay. Tantra considers Godhead as involving the union of, यहाँ पे जो तांत्रिक में है क्या होता है, यूनियन, दो एनर्जी का यूनियन है, ठीक है, of a masculine and feminine aspect. Energy or the शक्ति is considered as a feminine and is central to the tantric views of the universe. और जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, ये सेंट्रल है टू द तांत्रिक। ऐसा नहीं है कि मस्कुलाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फेमिनाइन को ज्यादा महत्व दिया जाता है या फिर इंपोर्टेंस दिया जाता है। ऑल्दो तांत्रिज्म हैज बीन कंडेम्ड, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा अच्छा है, क्योंकि हमने देखो कमेंट आ जाएगा तो थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस भी देना है, राइट। पूरा का पूरा तो सही नहीं था ना, पैट्रियार्की पॉइंट है, ओके इट इज चैलेंजिंग पैट्रियार्की, बट यू हैव टू आल्सो गिव अ पर्सपेक्टिव, द रियल पर्सपेक्टिव। ऑल्दो तांत्रिज्म हैज बीन कंडेम्ड फॉर इट्स मोर एक्सट्रीम एक्टिविटीज, इट सीम्स टू हैव बीन अ व्हीकल फॉर ऑपोजिशन टू द ब्राह्मणिकल ऑर्डर सोसाइटी। तो एक्सट्रीम एक्टिविटीज भी बहुत था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटीज तांत्रिज्म में होता है, जो कि कहीं ना कहीं पूरा का एज ए हॉलिस्टिकली सही नहीं था। और ये कहीं ना कहीं वो आया था एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी को चैलेंज करने के लिए। ब्राह्मणिकल ऑर्डर पे 4 अलग अलग कास्ट रहते हैं, काफी स्ट्रिक्ट रिजिड रहते हैं, तो उनको चैलेंज करने के लिए भी इट सीम्स टू हैव बीन अ व्हीकल फॉर अपोजिशन। तो ये बाद में इट लेटर इन्फ्लुएंस्ड हिंदुइज्म, जैसे कि शक्तिज्म बहुत ही ज्यादा
कल्ट हो गया शक्तिज्म, बुद्धिज्म, वज्रयाना में जो बोधिसत्व थे, बोधिसत्व के जो वाइफ थे उनको ताराज, ये भी आ गया। इवन जैनिज्म में यक्षिनीज। एग्जाम्पल दो हर चीज का, ठीक है। Therefore, you can conclude that at a conceptual level, challenge patriarchy, but not in bringing any changes in social codes. वो वही का वही रहा। हाँ, क्योंकि सोशल कोड में इतना चेंजेस नहीं ला सका बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिस। ये जो तांत्रिक प्रैक्टिस है वो ज़्यादा लाइक मासेस को पसंद नहीं आया, जो काफ़ी सारे एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस थे। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पैट्रियार्की को चैलेंज किया था, बट नॉट इन ब्रिंगिंग एनी चेंजेस इन द सोशल कोड्स। ओके, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, ओके, उर्दू लैंग्वेज। अच्छा, मैंने कुछ क्लास में मैंने बोला था कि उर्दू को खुद देखने के लिए एक्चुअली ये कवर्ड है, ठीक है, यहीं से कर सकते हो। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो उर्दू लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है। ओके, the word Urdu is of Turkish origin and means an army or camp. It appears to have been devised as an improvised speech to enable the Persian speaking Turkish ruling class and soldiers to communicate with regional people इंक्लूडिंग मुस्लिम कन्वर्ट्स। तो पहले जो इंट्रो है उर्दू लैंग्वेज का, ओरिजिन के बारे में लिख दोगे, कहीं ना कहीं टर्किश ओरिजिन है, वहाँ से आया है। और ये यूजुअली इसका मीनिंग क्या था, एक आर्मी था और कैंप था। तो इट अपीयर्स टू हैव बीन डिवाइज्ड एज एन इम्प्रोवाइज्ड स्पीच टू एनेबल द पर्शियन स्पीकिंग टर्किश रूलिंग क्लास जो जो करते थे एंड सोल्जर्स टू कम्युनिकेट विद रीजनल पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम कन्वर्ट्स। तो वहाँ पे उनका जो जो रूलिंग क्लास थे पर्शियन करते थे, तो और जो सोल्जर्स थे तो रीजनल पीपल के साथ थोड़ा एक हल्का सा लैंग्वेज में वो बोलने लगे, तो वही चीज उर्दू हो गया, मतलब काइंड ऑफ डायलेक्ट बोल सकते हो। तो वो आगे जाके बहुत बड़ा लैंग्वेज बन गया। तो हिस्ट्री ऑफ उर्दू इन इंडिया, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि उर्दू इंडिया में क्या उसका था। उर्दू एज ए लैंग्वेज was born out of the interaction between Hindi and Persian after the conquest of दिल्ली सुल्तानेट। दिल्ली सुल्तानेट आए, पर्शियन आया, ठीक है, हमारा यहाँ पे हिंदी था। तो वो जो बात करने लगे, जिस तरीके से जो इंटरेक्शन हुआ, वो जिस लैंग्वेज पे वो वहीं से आया है, ठीक है। ओरिजिनली इट वाज अ डायलेक्ट, पहले पहले तो डायलेक्ट ही था, बट स्लोली इट एक्वायर्ड ऑल द फीचर्स ऑफ अ फॉर्मल लैंग्वेज व्हेन द ऑथर स्टार्टेड यूजिंग द पर्शियन स्क्रिप्ट, ठीक है। पहले पहले ये डायलेक्ट ही था, फिर बाद में स्लोली इट एक्वायर्ड ऑल द फीचर्स ऑफ ए फॉर्मल लैंग्वेज। तो यहाँ पे और एक हिस्ट्री उर्दू को, और नेशनल लेवल पे या फिर आज हम उर्दू के बारे में पढ़ रहे हैं, अमीर खुसराव का यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू मेंशन। तो रोल ऑफ अमीर खुसराव। अमीर खुसराव वाज द अर्लीस्ट उर्दू पोएट अंडर द रेन ऑफ बलबान एंड वाज ए फॉलोअर ऑफ निजामुद्दीन औलिया। इंपॉर्टेंट वर्क्स इन उर्दू जैसे कि लैला मजनू, आईना सिकंदरी डेडिकेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी, ये सब उर्दू पे ही हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस बार मेंस दे रहे हो आप, अमीर खुसराव के बारे में जो मैंने स्टैटिक नोट्स में पढ़ा था, या फिर जो अलग से पढ़ रहे हैं, तो अमीर खुसराव के बारे में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देख लेना, ठीक है। इट कैन कम इन एग्जाम, इंडिविजुअल क्वेश्चन अबाउट अमीर खुसराव, नोट्स साइड में नोट कर देना। ओके, बहामनी किंगडम का भी बहुत रोल है साउथ में। बहामनी किंगडम जो बहामनी किंगडम वाज इंटीग्रेटेड इनटू डेक्कन सुल्तानेट्स, ओके। सो बहामनी किंगडम के टाइम पे जो कि बहामनी किंगडम वाज कंटेम्पररी टू विजयनगर एम्पायर, ओके। विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम के बीच में फाइट भी हुई थी। तो उर्दू वाज फर्दर गिवन एज इम्पेटस बाय द बहामनी किंगडम एंड स्टेट्स, और वही बहामनी किंगडम बाद में डिवाइड हो गया था, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेरार, ठीक है। इसको हम दिल्ली सुल्तानेट्स बोलते हैं। सो यहाँ पे दैट लैंग्वेज वाज कॉल्ड हियर एज दक्षिणी और डेक्कनी लैंग्वेज। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, डेक्कनी लैंग्वेज, ओके। फिर लेटर मुगल्स ने भी उनको और ज़्यादा प्रमोट किया। उर्दू बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द लेटर मुगल एरा एंड हैड बिकम द लैंग्वेज ऑफ द मासेस बाय देन। तब तक मुगल के टाइम पे तो ये लैंग्वेज ऑफ द मासेस ही बन गई थी। तब देखो, पर्शियन से आया था, हिंदी के साथ मिंगलिंग होके, फिर अमीर खुसराव ने जो लिखा, और साउथ में डेक्कन सुल्तानेट्स ने जो उसको प्रमोट किया, और साइड बाय साइड ऊपर मुगल्स भी आ गई थी उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं लेटर मुगल के टाइम पे ये मासेस का लैंग्वेज बन गया था। बहुत सारे वेल नोन पोइट्स लाइक गालिब एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। Therefore, it was in the Mughal era
एंड थ्रू आउट इट्स डिसइंटीग्रेशन इन द 18th सेंचुरी, जब मुगल एरा डिसइंटीग्रेट हो रही थी, मतलब लेटर मुगल्स के टाइम पे, द उर्दू लिटरेचर रीच्ड ग्रेट हाइट्स इवन इन मॉडर्न टाइम्स। आज के डेट में भी द पंजाबी लैंग्वेज वाज पुट ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट बाय बाबा फरीद गंज शेखर शकार। ओके, पंजाबी लैंग्वेज नहीं, या उर्दू लैंग्वेज। ओके, तो देखो क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन यूपी से पुट करता है इतना डिफिकल्ट नहीं। आप आंसर खुद देखो, ये आंसर डिफिकल्ट है, इट्स अ वेरी इजी आंसर। वेरी मतलब नॉर्मल आदमी रियल टाइम पे ऐसे आंसर लिख सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप अगर क्वेश्चन देखोगे ना, आपको लगता है कि यार क्या डेवलपमेंट लिखे हैं, कुछ तो नहीं आता, लेकिन आप आंसर देखो, वेरी इजी, बहुत इजीली एक नॉर्मल आदमी रियल टाइम पे भी लिख सकता है। बट द पॉइंट इज ही शुड नो कहाँ से कैसे पॉइंट लाके एक आंसर को इजी बनाना है, जो दिखने में भी अच्छा हो, पॉइंट्स भी अच्छा हो, और इट इज सेटिस्फाइंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ओके, ये एक आपके लिए है जो कि आप खुद करोगे। लिटरेरी अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल टाइम डिस्कस। यहाँ पे ये टॉपिक है जो मैंने क्लास में भी कराया था, ट्रैवलर्स ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल, वहाँ से आप लोगे। ठीक है, मोस्टली सबके पास पीडीएफ्स हैं, जिनके पास नहीं है, मैं मुझे एक बार पूछ लेना, मैं शेयर कर दूंगा। राइट, जो रश्मि एंड और एक दो हैं जो है, जस्ट Yes, sir. आस्क मी, आई सेंड द पीडीएफ्स, 2 पीडीएफ्स आई गिव, एक एंशियंट का, एक मिडिवल का है। सो बट द थिंग इज, Okay. पीडीएफ तो ज्यादा है, बट यू हैव टू टेक द पॉइंट्स एंड राइट। ओके, लिटरेरी अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स कैसे प्रूव एक्सट्रीमली हुआ इन राइटिंग द हिस्ट्री। नेक्स्ट, medieval architecture is a synthesis of indigenous styles and external influences. वेरी इजी आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। medieval architecture में कैसे इंडिजिनियस का भी चीज था और बाहर का भी वो था, आप लिखोगे। तो यहाँ पे medieval architecture है, सो अगर ये 250 वर्ड है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू इंक्लूड, यू हैव टू इंक्लूड दिल्ली सुल्तानत प्लस मुगल, मिक्स करके लिखोगे। तो सुल्तानत का आर्किटेक्चर, मुगल का आर्किटेक्चर। मुगल का तो वैसे हमको लास्ट क्लास में पता है, सुल्तानत का बस ऐड करना है। सुल्तानत में ज़्यादा आर्किटेक्चर है नहीं, बहुत कम है, पर यहाँ पे आपको दो डिवाइड कर देना है, एक इंडिजिनस का खुद का क्या है और बाहर से किसे आया था। दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आंसर को एक लिखो, मतलब एक पॉइंट वाइज लिखो, इसी फॉर्मेट में लिखो जैसे मैं आंसर देता हूँ। अभी तो वी हैव ऑलरेडी डन विद 80 क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट अभी तो पता चल गया हो कि आंसर राइटिंग होती क्या है। द जाइजेंटिक मुगल बिल्डिंग्स वर नथिंग बट टू गेट द लेजिटिमेसी इन इंडिया। अगर ये क्वेश्चन आ गया, हाउ टू राइट द जाइजेंटिक मुगल बिल्डिंग्स वर नथिंग बट टू गेट लेजिटिमेसी इन इंडिया। जो बड़े बड़े मुगल बिल्डिंग्स हैं, तो पहले तो मुगल के बारे में एक दो लाइन लिख दोगे, टाइमलाइन लिख दोगे। कैसे लिखोगे, सीधी सी बात है, मुगल का टाइमलाइन लिख दोगे, बाबर से आए, ठीक है, और हम सबको पता है बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, दे वर बिजी इन वॉर्स एंड ऑल, इनिशियल टाइम था, तो जाहिर सी बात है आर्ट आर्किटेक्चर इतना हुआ नहीं। उसके बाद अकबर के टाइम से सब बढ़ा, ठीक है, जहांगीर, अकबर, शाहजहां के टाइम, ये अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, इनके टाइम पे ही सब हुआ है। ठीक है, तो जितना भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, इनके टाइम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज दे आर बिजी इन वॉर्स एंड ऑल, सेटलमेंट करने में वक्त लगता है। तो ये जो स्टफ मैंने बताया, ये रहेगा आपका हमेशा इंट्रो पे। लास्ट क्लास में मैंने बोला था दैट यू कैन पुट इट इन इंट्रो। फिर आ जाओ क्वेश्चन पे, द जाइनेटिक मुगल बिल्डिंग्स कैसे इनको एक लेजिटिमेसी दिया। देखो, जम्मा मस्जिद बनाया, अब जम्मा मस्जिद, बस आपको लिखना है जम्मा मस्जिद किसने बनाया, क्यों बनाया, ग्लोरी ऑफ फतेहपुर, लेजिटिमेसी। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया, ठीक है, क्यों बनाया, डेक्कन पे विक्ट्री के लिए, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी इन इंडिया, राइट। अकबर का मौसलम जहांगीर ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था, अकबर का मौसलम बनाया था वो, मतलब कहीं ना कहीं वो अकबर को एक प्रमोट करना चाहते थे, बहुत बड़े, ये सो फेमस एंड बिग, तो कहीं ना कहीं वो लेजिटिमेसी हुआ। ताजमहल पता सबको है क्यों बनाया था, शाहजहां, आज के डेट में भी ताजमहल वेरी फेमस, लेजिटिमेसी इन इंडिया। मोती मस्जिद, शाहजहां इन द ऑनर ऑफ हिज डॉटर। तो ये सब चीज जो अपना खुद का है, या फिर वो कोई फैमिली हो सकता है, या फिर कोई एक विक्ट्री को
कमेमोरेट करने के लिए होता है, एनीथिंग व्हाट दे वर डूइंग, दे वर ट्राइंग टू पुट अ लेजिटिमेसी कि वी आर लेजिटिमेट इन इंडिया, इट इज नथिंग इलीगल, राइट। तो इस हिसाब से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आई फील 4 से 5 पॉइंट अगर आपके पास रेडीमेड है तो आपका आंसर मेंस में तो काम हो जाएगा GS1 पे। बिकॉज एग्जाम्पल के साथ आप लिखोगे, ईयर दे देना 1 मिनट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक फ्रॉम योर स्टैटिक नोट्स, ईयर दे देना एंड हु डिड व्हाई, दैट्स इट। बाकी अपने लैंग्वेज में लिखना है, 5 वर्ड का ही आंसर है, ये ओनली 5 वर्ड्स का आंसर है। ओके नेक्स्ट, कबीर। कबीर का फिलोसफी मुझे ऐसा लग रहा है आ सकता है बिकॉज काफी फेमस है। कबीर इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आवर स्टैटिक नोट्स, उनका जो फिलोसफी के बारे में एक देख लेना और उनका रिलेवेंस क्या है। सीधी सी बात है, जब फिलोसफी उनका 4 फिलोसफी करोगे तो उस हिसाब से 4 मॉडर्न टाइम्स का एग्जाम्पल दे देना। ब्रदरहुड आज के डेट में प्रॉब्लम हो रही है, कबीर कास्ट आज के डेट में कास्ट का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से लिखना है। और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी दिस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी डन, वसावना का जैसे हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन उसी तरीके से हो गया। सो यू कैन अलाइन भक्ति क्वेश्चन डन प्रीवियसली कबीर के बारे में। ठीक है, ठीक है, इतना लिखो, बाकी हम कल मिलते हैं। ओके, ओके, गुड नाइट।